Assalamu alaikum Ahmed Ghayas. Can you hear me? Yes, वालेकुम सलाम। Oh Ahmed, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, so Ahmed, uh, meeting has started, ठीक है, and we are gonna live stream on YouTube in just 1 minute, ठीक है। फिलहाल the meeting is unlisted, सही है। फिर हम उसमें AS Chemistry 2017 का विंटर का वेरिएंट 2 पेपर 2 वेरिएंट 2 करेंगे, ठीक है। ओके एंड देन जब तक पॉसिबल होगा आई कंटिन्यू, ठीक है। जब तक आप में हिम्मत हो आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। एंड हम कोशिश करेंगे कि 2-3 पेपर्स आराम से निकाल लें, ठीक है। थोड़ी सी लंबी मीटिंग होगी, ठीक है। एंड यू कैन लीव एट एनी टाइम, ठीक है। इसका टोटली ऑप्शनल। अच्छा, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, आई कैन सी योर स्क्रीन। ऑलराइट, ठीक है। Okay, so we are going live. Now we are live. All right. So, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so welcome guys. This is Shafat Khan on your screen. And today I'm starting off with AS Chemistry past paper series. All right, 2017 paper 2 variant 2. Okay, and we are gonna solve as many past paper questions as possible because CIEs are around the corner for AS Chemistry. The MDCAT students and the A-levels, the AKU students are also advised to join in. Okay, उनके लिए भी it's a fresh refresher of AS concepts. ठीक है, so अब बस हम start करने वाले हैं. This is the paper, right? Let me just make sure कि YouTube वालों को बिल्कुल सही से नजर आ रही है वीडियो. मैं बस ये start ले लेते हैं. Okay, so yeah, we are live. Okay, people are watching. There's one watching in. It's public, I guess. ठीक है. So guys, 2017's paper, 2 variant 2. All right, AS Chemistry. Let's get started now. All right, so October, November 2017. Okay, so yeah, we are live. एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक सेकंड. हाँ ठीक है, अब सही हो गई. Okay, so question 1 says the elemental sodium to sulfur react with chlorine. Okay, the melting points of some of the chlorides formed are, predict the shapes of AlCl3 and PCl3 and draw the diagrams to show the shapes, name the shapes and state the bond angles. All right, so we've got some shapes over here that we need to actually figure out. ठीक है, एंड देन फिर उसके अलावा ये मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स भी दे दिए हैं. तो पहली बात तो ये, दिस इज AlCl3 एंड दिस इज फ्रॉम द chapter chemical bonding. Remember, AlCl3, aluminum is in group 3, right? So एक aluminum atom is surrounded by 3 chlorine atoms. ठीक है, meaning there are 3 bonded pairs only, क्योंकि aluminum के outer shell में कितने electrons होते हैं?
तीन होते हैं, right? And it will use each one of those electrons to form a single bond with each of these chlorine atoms. So the shape is trigonal planar, ठीक है, because there are 3 bonded pairs and no lone pairs at all. ओके, सो अब ट्रिगनल प्लेनर कैसे ड्रॉ करेंगे? ट्रिगनल प्लेनर बड़ा ही सिंपल है, आप प्लेन बॉन्ड्स बना ले वही उसका शेप है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेन बॉन्ड्स ना भी बनाए तो एक वेज, एक डॉटेड बॉन्ड और एक प्लेन बॉन्ड से भी आप काम चला सकते हैं। सो यू गॉट द 3 क्लोरीन एटम्स, ओके, एंड दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। द शेप इज ट्रिगनल प्लेनर, ट्रिगनल प्लेनर मीनिंग इट्स अ फ्लैट मॉलिक्यूल, ठीक है, बिल्कुल एक फ्लैट मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इट्स अ ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल भी ऐसा कि बिल्कुल फ्लैट, जैसे आप ये हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथ कैसा फ्लैट है बिल्कुल, इसी तरह से एक फ्लैट मॉलिक्यूल है ये। एंड बॉन्ड एंगल जो इसमें होता है ये वाला, it's 120 degrees, so 120 degrees, तीनों bond angles, all of them are equal. Whereas PCl3 की अगर आप बात करें, so you've got a phosphorus which is bonded to 3 chlorine atoms, right? And in this case, you have a lone pair as well. So 1 lone pair and 3 bonded pairs. This means it's a shape similar to ammonia, right? So trigonal pyramidal. So यहाँ पर you need to draw the 3D notation. All right, you have a phosphorus, you have a dotted bond, all right, you have a wedge and a plane bond, along with the lone pairs. All right, and the shape is going to be trigonal pyramidal, trigonal pyramidal. And the angle over here is the same as that of ammonia, मतलब 107 degrees. ठीक है, clear अहमद, समझ आ रहा है? जी सर। Alright, आगे बढ़ते हैं। B part 1. Explain in terms of structure and bonding why the melting point of silicon tetrachloride is much less than that of sodium chloride. Okay, SiCl4 का melting point is less than that of sodium chloride. इसमें you need to explain in terms of structure as well as bonding. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में कौन कौन से बॉन्डिंग है एंड दोनों का स्ट्रक्चर कैसे है। बॉन्डिंग मतलब आयोनिक, कोवेलेंट या फिर मेटालिक बॉन्डिंग, 3 टाइप्स पड़ी है, राइट, बॉन्डिंग के। और स्ट्रक्चर या तो जाइंट होगा या तो सिंपल होगा। तो अब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। SiCl4 जो है इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, राइट, it's a covalent compound, and it's they've told you that the melting point is lower than, which means okay, it's simple covalent, right? So it's a simple covalent compound. पहली बात तो ये कि ये है simple covalent, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि कोवेलेंट भी हो गया, सिंपल भी हो गया। तो सिंपल कोवेलेंट का वैसे ही मतलब होता है कि इट्स नॉट जाइंट, इट्स सिंपल, एंड कोवेलेंट का मतलब कि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सोडियम क्लोराइड की जहां तक बात है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है इसका, जायंट आयोनिक, जायंट आयोनिक, ठीक है, जायंट आयोनिक लैटिस कहते हैं इसको। अब ये जायंट आयोनिक लैटिस है, ये तो बात हो गई इनके स्ट्रक्चर्स की। अब कौन सी बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में के लिए, राइट? सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiCl4 सिंपल कोवेलेंट है। सिंपल कोवेलेंट में हमेशा यू हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल, सो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं यहाँ पर। व्हेयरएज आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में तो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स यू गाइस नो आर मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ than the van der Waals forces. So they require more energy to be broken. Therefore, sodium chloride will have a higher melting point. इसको जल्दी से लिख भी लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर आंसर मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, which the examiner is expecting you to write. All right. So in terms of structure and bonding, so SiCl4 is a simple covalent compound. Whereas sodium chloride is giant ionic. ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज जायंट आयोनिक, SiCl4 इज सिंपल कोवेलेंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेंगे, मतलब फोर्सेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है। सो मेल्टिंग पॉइंट of SiCl4 depends on weak van der Waals forces. In sodium chloride, they depend on stronger ionic bonds. Since more energy is needed,
to break ionic bonds. Therefore, NaCl will have a higher melting point compared to SiCl4. And by the way, एक बात और बता दूं, ये SiCl4 है, ये SiO2 नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको SiO2 से कंफ्यूज कर देते हैं। SiO2 जाइंट कोवेलेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन SiCl4 का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। SiO2 सिलिका जैसे कहते हैं, राइट, सैंड। ओके, सो अहमद, ये बात क्लियर है बी पार्ट 1? जी सर। ऑलराइट, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो यू कैन आस्क, ठीक है, इमीडिएटली। ओके, फिर उसके बाद सवाल है। जी बोले सर, क्या कहते हैं, ये जो सिलिका होता है ये जायंट कोवेलेंट नहीं होता? सिलिका जो होता है ना वो होता है SiO2, समझ रहे हो। और ये कौन सा है? SiCl4 है। SiCl4 जो होता है ये सिंपल है, और जो SiO2 जो है ना, यस, ये वाला जायंट होता है। बट यहाँ तो SiO2 की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो इसकी हो रही है, तो इसलिए ये सिंपल है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। Explain why the melting point of SiCl4 is higher than that of PCl3. अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है कंपेयर टू दिस वन। देखें, SiCl4 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, तो पहली बात तो आप ये देख लें कि मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, अब ये दोनों जो है ना ये नॉन पोलर कंपाउंड्स है, ठीक है। PCl3 भी नॉन पोलर है एंड SiCl4 भी नॉन पोलर है, ठीक है। अब PCl3 एंड SiCl4 अगर दोनों नॉन पोलर हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इनकी जो, और दोनों सिंपल कोवेलेंट है, राइट। सिंपल कोवेलेंट है तो चाहे, मतलब सिंपल कोवेलेंट है और फिर वो PCl3 एंड SiCl4 दोनों में सिंपल कोवेलेंट है एंड नॉन पोलर भी है, तो इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिपेंड करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर, राइट। तो अगेन, अब वैन डर वाल्स फोर्सेस दोनों में है। अब एक में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, दूसरे में वीकर होंगी, तभी वो उसका जो जिसमें स्ट्रॉन्गर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसमें वीकर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से किस में ज्यादा होगी? सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiCl4 ज्यादा है। अच्छा, तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसमें जो जितने भी फैक्टर्स हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के वो ज्यादा होंगे, इसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी एंड सो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये लिख लेते हैं कि SiCl4 में SiCl4 has a higher MR, right? MR was the first factor on which Van der Waals force's strength depends, has a higher MR, greater number of polarizable electrons, therefore stronger Van der Waals forces which require higher energy to be broken. Okay, so that's the reason why SiCl4 has a higher melting point compared to PCl3. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई अहमद? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस की हमेशा 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। VDW फोर्सेस की स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? MR पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ VDW। Strength of VDW would be higher than, and so more energy would be needed. एनर्जी पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, राइट। आगे चलते हैं। Use dot and cross diagram to draw a molecule of SiCl4 and show outer electrons only. तो पहले आप ये देख लें कि सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, क्या क्या प्रोटॉन नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो पहली बात तो ये कि SiCl4 का तो स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, showing outer electrons only, ठीक है, बिकॉज सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, राइट। कार्बन के बिल्कुल नीचे होता है। तो एक सिलिकॉन अगर आपने बीच में डाल दिया, डॉट क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो इसमें हमेशा आप की भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डॉट जो है वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स एंड डॉट क्रॉस जो है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके अराउंड जो है 4 क्लोरीन एटम्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब ये डॉट, ये क्रॉस, फिर ये डॉट, ये क्रॉस, फिर ये डॉट, ये क्रॉस,
एक और डॉट और क्रॉस। ठीक है, ये क्लोरीन मैंने कुछ ज्यादा ही दूर बना दिया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो जितने क्लोरीन्स है ना, इन सबके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करने हैं, मतलब लोन पेयर्स। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर लोन पेयर्स ड्रॉ नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, so this is the structure of SiCl4, the dot cross diagram of SiCl4। तो अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक सब क्लियर है? जी सर, ये तो आसान है। ठीक है, अच्छा मेरी ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। ठीक है, तो यह मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सो ये देखें, ये पहला जो आंसर है ये तो यही था, ट्रायंगुलर प्लेन है, देन PCl3 भी सही है। ठीक है, SiCl4 में यू हैव सिंपल मोलेकुलर एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसका एक मार्क। NiCl में आयोनिक एंड जायंट। ठीक है, जायंट आयोनिक लैटिस, एंड सो ये वाली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसका तीसरा मार्क। एंड देन इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड देन ये आपके पास डॉट क्रॉस डायग्राम भी आ गई, सब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर वैसे आपकी वो मार्किंग स्कीम वाली नहीं आ रही स्लाइड नजर? मार्किंग स्कीम वाली स्लाइड नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो खैर है, जो मैंने बता दी वो वही है। ठीक है, ओके। हाँ, चल जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा ये YouTube वालों को भी जरा देख लूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई क्वेश्चन तो नहीं भेजा।
राइट, सॉरी, या अहमद, आई एम बैक। अच्छा, तो मैंने हर जगह शेयरिंग भी कर दी है, बस इस लिंक की। ठीक है, यूट्यूब पर भी कोई नहीं है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा है। ठीक है, अब ये स्क्रीन तो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये यूट्यूब वाली। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? जी सर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। वैसे क्वेश्चन 2 सर इज, अब एक बात। एक सेकेंड। अच्छा, तो मैंने हर जगह शेयरिंग कर दी है, बस इस लिंक की। ठीक है, हाँ, मैं इसको मैं म्यूट कर दूं। ठीक है, हाँ बोलो अहमद, कुछ कह रहे हो? जी सर, सर सवाल ये था कि ये जो मोल्स होते हैं ये मतलब आवाज ये कम हो, कितने P2। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। अच्छा, अब आ रही सर? हाँ, अब आ रही है, बोलो। जी सर, मैं पूछा था कि ये मोल्स जो होते हैं ये P2 के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? यार, P2 के में जो है ना, 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस तक आते हैं मोल्स के हमेशा। या तो एक पूरा क्वेश्चन मोल्स का आएगा, एक तो आता ही आता है लाजमी, या फिर 2 क्वेश्चंस आएंगे पूरे के पूरे। सही है। और जो बाकी के अच्छा। क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें भी कुछ कुछ पार्ट्स है वो मोल्स के ही होते हैं, तो मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोल्स काफी लोगों को मुश्किल लग रहा है वैसे इस बार, तो एक काम करते हैं, जितना हो सके मोल्स को भी जो है ना साथ साथ निपटाते हैं। ठीक है, तो आज जो आपकी क्वेश्चन 2 मोल्स से काफी लिंक कर रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मोल्स भी अच्छी खासी होती है। आपको पता है ये पीवी इक्वल्स एनआरटी में एन जो होता है वो मोल्स का होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। So now, at 450 Kelvin, phosphorus 5 oxide PCl5 decomposes to form phosphorus 3 chloride and chlorine. A dynamic equilibrium is established right over here. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आपको दे दिया है, जिसमें PCl5 है, PCl3 बना रहा है और क्लोरीन भी साथ में बना रहा है। ठीक है, and this is endothermic reaction because if you look at delta H sign, it's positive. Now, calculate the enthalpy and delta H of formation of PCl3 is given, it's minus 320 kilojoules per mole. Now calculate the enthalpy change of formation delta HF of PCl5 under these conditions and include a sign in your answer. अच्छा देखो, अब यहाँ पर आपके पास PCl5 की enthalpy change of formation is required. Yeah, and enthalpy change of formation of PCl3 is given. तो देखो, अब this is formation data, right? Formation data के लिए मैंने क्लास में क्या बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब भी आपके पास enthalpy changes of formation given होती है ना, तो आप सिंपली प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें चाहिए इंथैल्पी चेंज, जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स जो है, ये टोटल इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टोटल इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, दिस इज डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से, भाई PCl3 का दिया हुआ है हमें, PCl3 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट, इट्स माइनस 320, सो माइनस 320 लिखेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है क्लोरीन, उसका भी डेल्टा एच एफ लिखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्लोरीन इज एन एलिमेंट, राइट, एंड एलिमेंट्स का डेल्टा एच एफ हमेशा हमेशा इट्स ऑलवेज 0. Okay, we've done this in class. It's always 0. So if it's जी सर। always 0, so minus 320 plus 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये अभी समझ नहीं भी आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको याद कर लो, जो भी एलिमेंट दिखेगा ना, उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होगा, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, एलिमेंट कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में हो। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स की हो गई एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन, माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्टेंट की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन PCl5 की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम x कह देते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा H के इक्वल होगी, जो कि 124 है। बस अब x का आंसर निकाल लो, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये x यहाँ आ जाएगा, दिस इज गोना बिकम माइनस 320 माइनस 124। 1 second.
Yeah, Ahmed, sorry about that. थोड़ा सा distraction हो गई थी. हाँ, so I'm back. लेकिन ये AC को सेट कर दूं मैं. चलो बस सेट हो गया. हाँ, so where was I? Yeah. So we were solving this, right? So इसका आंसर आ जाता है आपके पास 320 plus 124. So 4 and 4 and 4. So negative of 444. ठीक है. फिर state and explain the effect of increasing temperature on the rates of decomposition. 124 था, ये क्या था? डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज? नहीं, ये एक्चुअली इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है. डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन है PCl 5 का. ठीक है. इसमें ये करते हैं कि इंथैल्पी चेंज, जब भी ओवरऑल इंथैल्पी चेंज आप निकालते हो ना इस इक्वेशन का, तो निकालने के लिए जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें से रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी को आप माइनस कर देते हो. ठीक है. अब इस केस में प्रोडक्ट्स तो दो हैं, एक PCl3 है, दूसरा क्लोरीन है. PCl3 की इंथैल्पी आपको ये रही गिवन है 320, तो उसको हमने यहाँ डाल दिया. सही है. क्लोरीन की इंथैल्पी मैंने आपको बताया कि 0 होती है बिकॉज इट्स एन एलिमेंट, तो यहाँ डाल दिया. सही है. अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये प्रोडक्ट्स की आ गई, माइनस जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इस केस में PCl5 है. राइट. सो PCl5 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, PCl5 का ही आपने कैलकुलेट करना है एक्चुअली, तो यहाँ इसको x कंज्यूम कर लेंगे एंड दिस विल इक्वल 124. ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 124. ठीक है, क्योंकि फॉर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट से आपके पास 124 का आंसर ही आता है. ठीक है. अब ये आने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास, और x की वैल्यू आ जाएगी -444. ठीक है. इसमें बस एक चीज आपने याद करनी है कि जब भी आपको इंथैल्पी चेंज निकाल on the rate of decomposition of PC. So let me tell you something. Whenever the temperature in
So yes, Ahmed. Yes, sir. Okay, so we're back. अब करते हैं इसे solve. So right, अब देखें, if you increase the temperature, the rate increases since particles have a higher kinetic energy. And so more particles would have energy. Greater than the activation energy. Okay? So more frequent, more successful collisions basically would take place. All right, state and explain the effect of increasing temperature on the percentage of PCl5 that decomposes. All right. So what will happen to the percentage of PCl5 that decomposes? Right, so up temperature up बढ़ा रहे हो. This is an endothermic reaction in the forward direction. Increasing the temperature would actually it would favor the forward reaction. So that's why the percentage of the decomposed PCl असल में इंटरनेट थोड़ा सा मसला हो रहा है. आई एम नॉट श्योर व्हाई. ये जो है ना बार बार कट रहा है, लेकिन आई होप इट वोंट हैपन नाउ. ठीक है. So for endothermic reaction, forward reaction is endothermic, therefore increasing the temperature shifts it to the right hand side. And shifting it to the right hand side, which would increase the percentage of PCl5 which is decomposed. Okay, and it makes sense. The reason why it makes sense is because you have PCl5 right over here. You shift it to the right, meaning PCl5 is going to its products, so it's going to decompose more. Okay. Part C says explain the meaning of the term dynamic equilibrium and the conditions necessary for it to become established. So dynamic equilibrium means it's in equilibrium. Equilibrium means forward equals backwards, and dynamic means that reaction is still occurring, but the forward and backward rates are equal. Okay. So meaning of the term dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium
is established when the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. Because that is exactly the point when dynamic equilibrium is established. Okay. And how is it achieved? Okay, conditions. So basically, conditions में जो है ना, this entire thing has to be done. The reaction, decomposition, it has to be done in a closed container. Okay, so the decomposition has to be performed in a closed container. Closed container में परफॉर्म होगा तो ही जो है वो जो चीज ब्रेक होगी वही उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो दोबारा से रिएक्ट कर सकेंगे. Part D. When 2 moles of PCl5 are decomposed at 450 Kelvin, 1 exponent 5 pascals, the resultant equilibrium mixture contains 0.8 moles of chlorine. Calculate the partial pressure of phosphorus 5 oxide chloride in this equilibrium mixture. Okay. So you have PCl5 over here. It's being broken down into PCl3 and chlorine. Okay. Now, this is a question of ice table, meaning initial change and equilibrium. What is the initial concentration of PCl5? So 2 moles is available, right? It's 2. What is the initial concentration of PCl3? Well, initially there was no PCl3, so 0 and 0, right? Then it says the resultant equilibrium mixture contains 0.8 moles of chlorine. So at equilibrium, you have 0.8 moles of chlorine. Now, calculate the partial pressure of phosphorus chloride. ठीक है, partial pressure calculate करना है. अब उससे पहले we just need to complete this ice table. Okay, we need to complete this one first. So इसको complete करने से पहले हमें देखना होगा कि what is the change that has just occurred. So over here PCl5 से let's say अगर x मोल्स कम होंगे तो यहाँ पर x मोल्स बढ़ेंगे और यहाँ भी x मोल्स बढ़ेंगे. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू होगी 2 - x, इसकी वैल्यू होगी x, एंड यहाँ पर x एक्चुअली किसके इक्वल है? 0.8 के. ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए आप इनिशियल और चेंज को दोनों को ऐड करते हैं तो 2 - x आ जाएगा, 0 + x आ जाएगा, तो 0 + x आ जाएगा. 0 + x इक्वल्स 0.8. सो x की वैल्यू आ गई 0.8, बट इन्होंने x की वैल्यू नहीं पूछी, इन्होंने पूछी है इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इक्विलिब्रियम मिक्सचर के पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपने करना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, meaning moles of PCl5 divided by the total moles multiplied by the total pressure. Remember, this was the formula for calculating the partial pressure. Now, what is the moles of PCl5 that you calculated? So, what are the moles of PCl5? At equilibrium mixture, it's going to be 2 - x, right? 2 - 0.8. Which will give you 1.2 divided by the total moles. So this x is also 0.8. This is 1.2. So 1.2 plus 0.82 and 2.8 multiplied by the total pressure, which is 1 exponent 5. The answer turns out to be 4.29 raised to the power of 4 pascals. Okay, because partial pressure has been asked, the unit is Pascal. It's already given. Write an expression for an equilibrium constant Kp
the decomposition of PCl5. So equilibrium constant Kp decomposition of PCl5. So it's products upon reactants, right? So products are PCl5. Sorry, not PCl5, it's PCl3 actually. Partial pressure of PCl3 multiplied by partial pressure of chlorine divided by partial pressure of products to the power of their moles on reactants to the power of their moles से आ जाएगा क्योंकि ये products हैं उनके moles divided by जो पास इन सबको partial pressure कर देना है इनकी powers coefficient of moles add कर देना है ठीक है partial pressure of PCl3 and of chlorine in equilibrium mixture are both this much. Calculate the value of Kp and states its units. Kp की value calculate करनी है इस case में units के साथ. So expression तो हमारे पास आ चुकी है. Value निकालनी है, ठीक है? ठीक है Okay, so partial pressure of PCl3 is given, chlorine is also given. Both दोनों के partial pressures आप यहाँ डाल दें 2.86 raised to the power 4 multiplied by 2.86 raised to the power 4. Divide कर दें से PCl5 से, so PCl5 partial pressure कहाँ है? We calculated. Oh yeah, we calculated. It's 4.29 raised to the power 4. Raised to the power 4 से cancel. Simplify करना है बस अभी से. आंसर आ रहा है 1.91 raised to the power 4. यूनिट्स क्या है इसके? तो यूनिट्स में जो है ना इन दोनों के यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इसके बचेंगे, तो ये पास्कल होगा सिर्फ. ठीक है आगे चलते हैं. क्वेश्चन 2 तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. वो सर ठीक हेलो जी सर, मैं बस मुझे अभी निकलना पड़ेगा. मैं फिर आपकी बाद में ये रिकॉर्डिंग देख लूंगा. मैं बोलूँ मुझे अभी निकलना पड़ जाएगा, तो मैं आपकी बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा. ठीक है श्योर श्योर. ओके, अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़. अभी थोड़ी देर में एंड कर रहा हूँ इसे. ओके सर. अच्छा गाइस, हमने पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम अगले लाइव स्ट्रीम में करेंगे. ठीक है, इसी टाइम पे ये आएगा लाइव स्ट्रीम. ठीक है.
बीच में भी आ सकता है वैसे, सो यू हैव टू जस्ट कीप एन आई ऑन द यूट्यूब चैनल। जब भी आपके पास अपडेट आ जाए तो तभी आपने जो है आ जाना है इस पर, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब